नमस्कार। पश्यंती के शुभारंभ समारोह में अनामिका दीदी की तरफ से मैं विनीता आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पश्यंती के सफर की शुरुआत हो चुकी है और इस सफर में अभी बहुत से पड़ाव आएंगे जिनसे सीखते हुए हमें सतत आगे बढ़ना है। आज के समारोह की शुरुआत महादेवी वर्मा जी की कविता और चिन्मयी जी के गायन से करते हैं। आपका बहुत स्वागत है चिन्मयी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि इस पहल में मैं शामिल हो पाई हूँ और इसकी शुरुआत मैं कर रही हूँ महादेवी जी के गाने से, महादेवी जी, जी की कविता से। जी तो चिन्मयी ऑल योर्स, द स्टेज इज ऑल योर्स। जी जी जी। बस ज्यादा पास नहीं, ज्यादा पास नहीं। चिर सजग आँखें ऊनींदी, चिर सजग आँखें ऊनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना। चिर सजग आंखें ऊनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना हो। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसत व्योम रोले। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसत व्योम रोले। आज भी आलोक को आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। जाग तुझको दूर जाना हो। रे गा गा रे पापा नी ना पा मा गा रे गा सा रे गा गा रे पापा नी ना पा मा गा रे गा सा रे मा पा नी सा रे सा नी ना पा मा गा रे रे मा पा नी सा। बांध लेंगे क्या तुझे ये, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। पथ की बाधाएं बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तू ना अपनी छाँव को, तू ना अपनी छाँव को अपने लिए तारा बनाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना हो। शुक्रिया।
बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत। थैंक यू सो मच चिन्मयी, इतनी मधुर आवाज और इतना सुंदर संदेश। May I please request my colleague Tarika to introduce the next guest? I can't hear you, Tarika. Is this better now? Yeah, a little better. I think there was some technical error. I'm so sorry for that. That's okay. We're very fortunate to have Dr. Ranjana Kaul, who will deliver the welcome address. I will just take 1 minute to introduce Dr. Ranjana Kaul to everybody who's joined us through Facebook and everywhere else, and then I'll hand over the stage to you, ma'am. Dr. Ranjana Kaul is an associate professor of English literature with the College of Vocational Studies at the University of Delhi. She is an eminent translator, and her works like Sagar of Satisar by Chandrakanta, This Metropolis, the paper Bastion, and other stories are to her credit. They have been widely appreciated as well. She's enriched the world of academic and literary writings with her work, and we would like to welcome her to enrich this platform with a welcome address. And so we start with your words, ma'am. Thank you, Tarika. That's very kind of you. Good afternoon, everyone. This beautiful song sung by Chinmay is an appropriate welcome to our distinguished guests and to everyone who has joined us on the occasion of the launch of Pashyantee, a bilingual women's journal dedicated to Samrasya, equipoise. We are honored and delighted to have eminent writers, academics, theatre artists, media experts, and visionaries, young and old, from the world of the arts and literature with us on this auspicious occasion, especially our chief guest for today, Mr. Yuvraj Sharma, well-known theatre activist, poet, and former professor of the National School of Drama. We also have with us Mr. Utkarsh Amitabh, author and CEO Network, Ms. Vanita Asthana, author and media academic, and the distinguished members of the editorial board of Pashyantee, Dr. Mamta Kalia, Professor Renu Unyal, Dr. Alka Tyagi, Rashmi Bharadwaj, and Medha, who have put in so much effort to make this day a possibility. Pashyantee is a labor of love and dedication, and a testimony to the manner in which we can surmount challenges even in trying times. It constitutes a celebration of women's voices, as well as a recognition of the manner in which women writers use and have used subversive techniques to break linguistic and social barriers. As Anamika ji has stated so beautifully in her thought provoking vision statement, I quote, the dynamic strength of these women writers, lies in their constant questioning of structures and hierarchies on the one hand, and a constant battle against division and isolationism on the other. A journal like Pashyantee provides an amazing platform and meeting space for young writers and readers to access the best of contemporary literature. This is a heartening and inspiring initiative which will help to fill the gaps in the literary space left by the decline of a lot of published literary journals of the past, which we are all familiar with. Journals like the Saptahik Hindustan, Dinman, Dharam Yug, etc., many of which were launch pads for eminent Hindi writers, whom we know so well today. Pashyantee constitutes an attempt to sensitize both young men and women to the goal of a more equitable society, one in which harmony is the guiding principle, not just in the arts, but also in life. Its broad objectives, as we are all aware, include a revisiting of the classics to explore the feminine principle from the multiple perspectives offered by different schools of feminism, an attempt to build bridges across cultures and explore local resources, and the use of translation as a means of accessing discursive materials from varied cultures and literatures, especially of South Asia. Acknowledging the inadequacy of existing patriarchal language, Pashyantee aims to address the daunting task of translating, deconstructing the modern bhashya of womanist texts. It has been said that every act of communication is a miracle of translation. But we can turn this saying around and say that every act of translation is a miracle of communication. And translation today does
and has made its own space and has to be accepted as a way of interpreting, disseminating texts, which would not be available to most of us otherwise. Pashyantee as a journal constitutes an attempt to connect the dots and fill those empty literary spaces between them. An attempt whose success is the result of the collective efforts of Anamika ji and the entire Pashyantee team. So at the end of my welcome to all of you who are going to be contributing so well and so deeply to the literary journal, I want to say that once again, it is my privilege to welcome all of you to the fruition of this dream of literary excellence, intellectual debate, and social equity. Thank you once again and welcome once more. Vanita? Thank you so very much, ma'am. It is my absolute delight and my absolute honor, after Ranjana Paul ma'am's words, to be able to invite Ms. Mamta Kalia, who is, of course, her name needs no introduction whatsoever in any gathering of intellectuals. But still, for the sake of convention, because we are so happy that she is able to join us here today, I have to mention that she has won so many important awards like the Vyas Samman, the Yashpal Katha Samman, the Sahitya Bhushan Samman, Ram Manohar Lohia Samman, Mahadevi Verma Samman, and the Sita Awards. The awards have graced her as much as she's graced us with her literature and the awards with the contributions that she's made. Her art, of course, transcends the mere literary to reflect the poetic beauty, the chaos, and the intimate whirlpools of the lived lives of women. Her works and Pashantee's ethos resonate in the same frequency. And because of this, and because of her stature, we're so honored to be able to invite you to deliver your address, ma'am. Mamta Kalia, ma'am. मनु मेरी आवाज नहीं जा रही? Are you getting me? आपकी आवाज आ रही है। Okay, okay. Uh, you see, this news of Pashyantee, to be edited by Anamika and her team from Vani Prakashan, has been quite in the air for some time. And I've been waiting eagerly for this entire concept to materialize and to come in solid form. Because in this depressing time, when really nothing good is happening, the launch of a magazine is both a gateway and an overbridge for writers. Because I find today the world is multilingual. So it is a very good idea to have a bilingual magazine because we have to reach out to the millions. And Hindi writing, you see, has such a lot of potential, especially women writing today are going into all sorts of subjects and they are not afraid to tackle any difficult or crucial issue. And so it is much better that we have better works of Hindi translated into English and reflected in Pashyantee. We already have a very big galaxy of writers and scholars associated with this blueprint of the magazine. And I'm very confident that it is going to take a good shape because Vani Prakashan is not known as a loser for anything. The magazine is bilingual, so let me also become bilingual. मैं ये कहूंगी कि जब वाणी प्रकाशन का नाम किसी पत्रिका या पुस्तक के साथ संबद्ध होता है तो हम आंख मूंद कर उसको खरीद लेते हैं क्योंकि हमें ये पता रहता है कि वो गुणवत्ता के एक मानक के नीचे नहीं जाएगी। यही मेरी आशा पश्यंती से है और मैं जानती हूँ कि अनामिका खुद भी न जाने कितनी बार मेरे साथ संपादन कर चुकी हैं। हमने उन्होंने दोनों ने मिलकर
साहित्य अकादमी के लिए भी संपादन किया है, और मैं जानती हूँ कि उनके अंदर एक नीर क्षीर विवेक हमेशा मौजूद रहता है, और बिना तल्ख हुए, बिना किसी कटखनेपन के, बिना किसी कटुता के, वो अपनी बात को जोरदार तरीके से कह लेती है। तो देखिए, संपादक पर बहुत निर्भर करता है कि एक पत्रिका की सफलता के पीछे क्या है, क्योंकि संपादक की न केवल दृष्टि होती है, उसकी दूरदृष्टि भी बहुत काम आती है। वो अपनी पत्रिका के कम से कम अगले 6 अंक दिमाग में रखता है, तब शुरू करता है। हिंदी साहित्य में बहुत लंबी परंपरा है कि किसी न किसी बड़े प्रिंटिंग प्रेस ने या किसी प्रकाशक ने एक मैगजीन या एक पत्रिका की शुरुआत की। आप जानते हैं, ये सरस्वती को इंडियन प्रेस चिंतामणि घोष ने सबसे पहले शुरू किया था। भले ही वो बनारस से शुरू हुई, लेकिन बाद में तो इलाहाबाद से जब वो जुड़ी तो अनवरत निकलती रही वो। अब उसका पुनरुत्थान हुआ है, जबकि अब चिंतामणि घोष जी नहीं रहे हैं। तो आप ये देखिए कि पत्रिकाओं के साथ संपादकों की प्रतिष्ठा और उनके अस्तित्व और व्यक्तित्व दोनों का सवाल नत्थी रहता है। और यहाँ तो साथ में एक बहुत बड़े प्रकाशन जगत का भी इसके साथ नाता जुड़ा रहा है, और वो इसको संभाल ले जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि छपाई में और किसी चीज की टाइप सेटिंग में, बाइंडिंग में कितना समय लगता है। और सबसे बड़ी बात होती है वितरण की। आपने पत्रिका छाप ली, लेकिन अगर आप वितरित नहीं कर पाए, अगर वो सही और सुधी लोगों के पास पहुंच नहीं पाई, तो वो व्यर्थ है। अगर वो पड़ी रह गई तो वो मिट्टी है। आपके विचार आपके पास पड़े रह जाएंगे, कागजों में पड़े रहेंगे, उनको दीम के पड़ेंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि वाणी प्रकाशन जैसा एक प्रतिष्ठान उसके वितरण का, उसके विक्रय का पूरा देखभाल कर सके, प्रबंधन कर सके, और हम लोग उस सब उसमें सर्वश्रेष्ठ देने की इच्छा करें। यानी जो इसमें युवा स्वर आए या वरिष्ठ स्वर आए, वो ये जरा याद रखे कि हर चीज जो हो वो टकसाली मुकम्मल हो। आजकल हो ये गया है कि एक नकली किस्म का प्रगतिवाद, एक नकली किस्म का उग्रवाद सामने आ जाता है। उससे ये होता है कि ना तो साहित्य का भला होता है और ना उस लेखक का कोई भला होता है, और पत्रिका की भी छवि जो है वो धीरे धीरे धूमिल होती चली जाती है। तो इन सारे खतरों के बीच हम लोगों को इस पत्रिका की नियमितता भी देखनी है, और इसकी प्रासंगिकता देखनी है, और पठनीयता तो देखनी ही देखनी है, ताकि इसको लोग खरीदें। और जैसे आज हम लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाते हैं और पुराने कथा देश के अंक खरीद के लाते हैं। पुराने हम कितनी पत्रिकाएं हैं जिनको खरीद के लाते हो, पुराने इश्यूज। हमको बिल्कुल तकलीफ नहीं होती कि पुराने इशू का हम 100 रुपया देकर आ रहे हैं। इसी तरह से मैं चाहती हूँ पश्यंती की प्रतिष्ठा हो कि इसके अंक को लोग ढूंढ ढूंढ के पढ़े, बांट बांट कर पढ़े, चुरा कर पढ़े, उधार लेकर पढ़े। और मेरी पूरी शुभकामनाएं वाणी और पश्यंती दोनों के साथ है। Thank you very much, ma'am. You are the leading light for us. और पश्यंती, जैसा मैम ने बताया, पश्यंती हमारी बौद्धिक चेतना का प्रतीक है। पश्यंती इज अ लेयर्ड वर्ड and it is the second of the 4 stages of speech in Vyakaran and signifies the intellectual consciousness in Vedic knowledge system. Let us know more about Pashyanti and its vision from our team of executive editor. May I please request Rashmi Bharadwaj ji, Medha ji and Alka Tyagi ji to please walk us through the journey of Pashyanti. शुक्रिया विनीता जी। अपनी बात शुरू करती हूँ मैं। यहाँ मौजूद सभी गण्यमान्य जनों को, सबको मेरा नमस्कार। मेधा जी, ममता जी, रानू जी, अनामिका जी, जो भी मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, डॉक्टर अलका त्यागी। पश्यंती एक ऑनलाइन पत्रिका है, एक विजन है, एक ड्रीम है, और इसके बारे में बताने से पहले मैं एडलिन रिच का एक कोट यहाँ शेयर करना चाहूँगी, जो वो दरासल लेस्बियन कॉन्टिन्यूटी के लिए के बारे में कहती हैं।
I believe it is the lesbian in every woman who is compelled by female energy, who gravitates towards strong women, who seeks literature that will express the energy and strength which drives us to feel imaginatively, render in language grasp the full connection between women and women. तो जब हम जब पीछे लौटते हैं और अपनी संस्कृति की ओर झाँकते हैं, तो आदि मानव गुफा काल में जो हमें चित्र मिलते हैं, जो हम मान लेते हैं कि स्त्रियों ने बनाए हों, उससे लेकर लोकगीत तक, स्त्रियों ने सामूहिक कंठ जोड़कर, सामूहिक अपनी चेतना को एक साथ मिलाकर, कलाओं के माध्यम से अपने दुख-सुख, अपने रुदन, अपने विलाप, अपने स्वप्न, अपने अस्तित्व, अपने एक्जिस्टेंस को स्वर दिया। और इसमें जो सबसे ज़्यादा उनका I got संबंध it. I got it. Thank you. अगर हम सब अपने अपने माइक बंद कर लें तो हमारे लिए ठीक हो जाए। जी, थैंक यू सर। तो इसमें जो हमारा सबसे बड़ा माध्यम बना वो कलाएं थीं। कलाओं और साहित्य ने हमें जोड़ा, हमें हमारे अस्तित्व को, जो कहीं न कहीं पितृसत्ता द्वारा, पैट्रियार्की द्वारा दबाया गया था, जो हमारी दमित आकांक्षाएँ थीं, उनको स्वर मिला। और जब एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ खड़ी हुई, तो वो जो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना, कुछ उसी परिकल्पना से डॉक्टर अनामिका ने उसी साझा स्वप्न को लेकर और उसमें कुछ और रंग मिलाकर, उसे और विस्तार फलक देकर 2018 में अलाव की परिकल्पना की थी, जिसका पहला कार्यक्रम हमने विश्व पुस्तक मेले में किया था, जहां सभी भगिनी कलाओं के लोग लिटरेचर से, पेंटिंग से, फिल्म से, संगीत से सब उपस्थित हुए थे। सबने इंटरेक्शन किया, सबने अपने अपने संघर्ष, अपने क्रिएटिव प्रोसेस को शेयर किया और हमारी एक टीम बनी। लेकिन फिर भी कहीं कुछ बाकी था। वो जो बाकी था वो यहाँ तक आना था। आज जो ये काफिला जुड़ा है, जो आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, जो इतने सारे विविध रंग, इतनी सारे विविध कलाएं, इतने सारे विविध भाषाएं, जो आज सब पश्यंती के रूप में, अलाप से चलकर पश्यंती के रूप में जो आज यहाँ तक आई हैं, शायद यही स्वप्न था जो अनामिका जी ने देखा था। और तब की जो सामूहिक चेतना थी स्त्रियों की, जो कला से जो जुड़ रही थी, वो संघर्ष था उनका, वो उनकी जो दमित स्वर थी उसकी अभिव्यक्ति थी। लेकिन आज ये उससे भी आगे बढ़कर संघर्ष भी है, अपनी पीड़ा का व्याख्यान भी है, एक दूसरे को थामने का एक प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन आज ये एक सेलिब्रेशन भी है। आज ये स्त्री कला, स्त्री साहित्य का सेलिब्रेशन है, हम सबकी अभिव्यक्ति का सेलिब्रेशन है, जो पश्यंती के मंच पर आपको दिखेगा, ऑनलाइन मंच पर दिखेगा। अभी जो ये पत्रिका है, जैसा कि जो हमारे नए दर्शक यहाँ जुड़ेंगे जो पश्यंती के बारे में नहीं जानते हैं, ये एक ऑनलाइन पत्रिका होगी, बाइलिंगुअल पत्रिका होगी, जिसे आगे भविष्य में हमारी और टीम बनी तो हम उसे प्रिंट फॉर्म में भी लाएंगे। अभी इसके साथ सिर्फ एक हमारी जो कहूँ कि एक सेल्फ ऑटोनॉमस टीम जुड़ी हुई है, जो अपने लेवल पर इसको चला रही है। अभी कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। भविष्य में यह भी होगा और आगे पायदान बनेंगे। और यह सिर्फ एक ऑनलाइन मंच ही नहीं है, इसमें स्त्रियों के जितने आपस में जो राइटिंग के प्रोसेस होते हैं, जो भी उनको राइटर्स ब्लॉक हुआ, वर्कशॉप हुआ, जो नए लेखक आ रहे हैं उनको मोटिवेट करना हुआ, फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, इसके अलावा और भी कई चीज़ें जो विमेन एस्पेक्ट, विमेन आर्ट फॉर्म से जुड़ी हुई है। पश्यंती उन सब क्षेत्रों में, एनजीओज के क्षेत्रों में अपनी बात करेगा, उस तक अपने विस्तार को लेकर जाएगा। तो एक बहुत बड़ा ड्रीम है जिससे हम सब, जैसे अलाव होता है, जैसे अलाव जला हुआ है, व्हाट्सएप पर हमारा एक ग्रुप है, स्त्रियों का ग्रुप है, जहां हम सब अपनी उपलब्धियां, अपने सुख दुख शेयर करते हैं। तो हम सब उसकी छोटी छोटी संविधाएं हैं जो हमें साथ मिलकर अपनी रचनात्मकता से, अपनी रचनात्मक जिजीविषा से इसको जलाना है, इसको जलाए रखना है। और यहाँ पर आकर अगर मैं जो अनामिका जी का कॉन्सेप्ट है नवल पुरुष, सहयोगी पुरुष का, उनके नाम ना लूं तो पश्यंती की जो यह यात्रा है वो अधूरी रह जाएगी। भरत तिवारी जी जिन्होंने ये पूरी संविधा, एक अलाप को जो मंच देने का काम किया, वो किया। टेक्निकल जितना असिस्टेंट होता है वो भरत तिवारी जी ने प्रदान किया। ऋत्विक भरतिया हमारे साथ बने रहे, प्रोफेसर अतुल और युवराज जी अभी हमारे यहाँ बीच बैठे हुए हैं। तो ये सिर्फ स्त्रियों को साथ लेकर चलने का एक मंच नहीं है, ये स्त्रियों के साथ उनके सहयोगी पुरुषों की भी आकांक्षाओं को स्वर देने का स्वप्न है कि किस तरह स्त्री पुरुष साथ मिलकर एक सुंदर समाज, एक बेटर सोसाइटी, एक यूटोपियन सोसाइटी जिसकी
स्त्रीवाद कल्पना करता है, जहाँ पे सभी मनुष्य एक साथ चल सकें, जहाँ सभी मनुष्य हों, बराबर मनुष्य हों, बिना लिंग, जाति, धर्म के किसी बंटवारे के। तो पश्यंती उस विजन के साथ उन पुरुषों को भी अपने साथ लेकर चल रहा है जो हमारी इस यात्रा में, इस अंतर यात्रा में हमारे साथ हैं। पश्यंती का जो नाम अलाव से पश्यंती तक आया, इसके पीछे कई तकनीकी भी कारण थे, ISSN नंबर और बाकी, लेकिन यह पश्यंती से अच्छा नाम मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म के लिए कोई और नहीं हो सकता था, जो आदि भृतहरि की संकल्पना से, जिसमें हम अपने इंटरनल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, अपनी अंतर यात्रा की बात करते हैं। क्योंकि जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं या स्त्रीवाद की बात करते हैं, तो वो बाहर से शुरू तो होता है, बाहरी कन्फ्लिक्ट से वो कहीं हमारे अंदर उतरता है, उसका सॉल्यूशन हमारे अंदर है, जो विभिन्न कलाओं के रूप में बाहर निकलता है। तो पश्यंती उस जर्नी का सेलिब्रेशन है, उस सेल्फ एक्सप्लोरेशन का सेलिब्रेशन है, जो हम सब औरतें, हम सब कलाकार औरतें अपने अंदर उतर कर करती हैं, और उसको एक बाह्य सामूहिकता के साथ एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते हुए, हमें आगे बढ़ते हुए लेकर जाना है। जिस तरह से एक मुझे मेट्रो का एक परिकल्पना याद आती है। मेट्रो का जो फीमेल डब्बा होता है, जहाँ पर हम बिना किसी अवरोध के, बिना किसी संकोच के, भय के बस खुद को डाल देते हैं धक्कम धुक्के के बीच भी, और अपनी अपनी जगह बना लेते हैं, सब अपनी अपनी लेग स्पेस बना लेते हैं। तो पश्यंती कुछ उसी तरह की यात्रा है, जहाँ सब स्त्रियों को उनका खुद का स्पेस भी मिलने की एक अवधारणा है। इसके साथ साथ सबको साथ लेके चलने की भी एक स्वप्न है, जो कोई पीछे छूट रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्त्रियां जिस बृहद पैमाने पर लिख रही हैं या विभिन्न माध्यमों द्वारा खुद को अभिव्यक्त कर रही हैं, चाहे वो संगीत है, कला है, शायद अब भी कुछ कहीं स्पेस, उनको वो स्पेस नहीं मिल पाया है, कुछ कहीं कमी रह गई है। और मुझे लगता है पूरे एशियाई परिदृश्य में शायद यह पहली ऐसी परिकल्पना होगी जहां पर एक साथ इतने सारे आर्ट फॉर्म और इतने वेरिड फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस, ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस को साथ लेकर चलने का जो ये मंच तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जो कि अब मुझे लगता है कि साकार रूप में इतने वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे सामने है, और सबसे सुंदर रूप में हमारे सामने है। क्योंकि जब देर हो रहा था तो हम सबकी धड़कनें बढ़ रही थी, सवाल भी आ रहे थे कि इतना समय क्यों लग रहा है, लेकिन ये इतना समय इसलिए लग रहा था कि पश्यंती को इस रूप में हमारे सामने आना था, जिस रूप में आज ये है। तो इस तरह का मंच मुझे नहीं लगता कि इस पश्यंती के अलावा कहीं और पूरे एशियाई परिदृश्य में मुझे नहीं नजर आता। अगर हो सकता है आप लोगों को कुछ पता हो तो आप बता सकते हैं। और अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि ये जो हमारे सभी सहयोगी पुरुष हैं, वो उन सबके सहयोग के साथ हमें हमारी इस अंतर यात्रा में हमारे अपने अपने हिस्से के सच को सामने लाना है, और पैट्रियार्की से जो हमारा इंटरनल जो आउटर कन्फ्लिक्ट है, उसको अपने इंटरनल प्रोसेस के साथ मिलाते हुए, उसको सम्मिश्रित करते हुए, जो एक हमारी कलात्मक यात्रा का सेलिब्रेशन है, उसके कई सारे अंश अभी आपको पश्यंती पर मिलेंगे, और आगे ये और वैलिड फॉर्म में और डेवलप करेगा। इसे हम ऑफलाइन मंच तक ला सकें, इसे हम पत्रिका के फॉर्म में ला सकें, इसे हम NGO के तौर पे डेवलप कर सकें। स्वप्न का विस्तार का कोई अंत नहीं है, आकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है, बस सबका एक ही मुझे लगता है कि इन सब के पीछे जो एक बाह्य फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स ज़रूरी है, वो हमारी सामूहिकता है, हमारा सिस्टरहुड है, जिसकी इतनी सुंदर परिणति, जो सिस्टरहुड दशकों से सदियों से, बल्कि मैं कहूँगी कि स्त्रीवाद, और जब स्त्रीवाद नहीं भी था तब भी हमारे मानस चेतन का हिस्सा था, वो आज यहाँ साकार रूप में हमारे सामने है। बहुत शुक्रिया, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं इसकी एक समिधा हूँ, मैं इसका एक अंग हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया रश्मि जी। मेधा जी से अब हम आगे की परिकल्पना सुनेंगे। Please unmute yourself, Medha ji. रियली सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि, और बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ, और मंच पे उपस्थित जितने भी गणमान्य हस्तियाँ हैं, युवराज शर्मा जी, रंजना कौल जी, ममता कालिया जी, अनामिका जी, और रानू नियाल जी, विनीता जी, अलका जी,
बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ इस क्षण में। रश्मि जी ने बहुत सुंदर से पश्यंती की परिकल्पना की बात कही, और मुझे लगता है कि अभी का जो वक्त है, उस वक्त में पश्यंती की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि न केवल अपने देश में बल्कि पूरे वैश्विक परिदृश्य में ध्रुवीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जितनी भी विभेदकारी और विषमतामूलक विचारधाराएं हैं, सारी कैटेगरीज हैं बांटने वाली, वो सब बहुत ही मजबूत होती जा रही हैं। हम अतिवाद की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो लगभग लगता है जैसे कि बुद्ध के मध्यम मार्ग को हम पूरी तरह से भूल गए हैं और हम बुद्ध की विरासत वाली इस दुनिया में रह रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं। ऐसे में पश्यंती एक ऐसी जगह है, ऐसा मंच है जो सारी विचारधाराओं से परे जाके, बल्कि जो लिंग है, भाषा है, और कलाओं की भी विविध श्रेणियां हैं, साहित्य की विविध श्रेणियां हैं, विचारधाराओं की विविध श्रेणियां हैं, धर्म की विविध श्रेणियां, उन सब के परे जाके शुरुआत हम एक स्त्री के मंच के रूप में कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अनामिका जी का स्वप्न है, वो स्वप्न है सभी तरह की विविधताओं और कैटेगरीज से परे जाकर एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना जहां हम मनुष्य मात्र होने के, मनुष्य की जो पूर्णता है, मनुष्य अपने सर्वोत्तम रूप में कैसे निखर कर सामने आए, कैसे उसका स्व आलोकित हो, उसके लिए इस मंच को तैयार किया जा रहा है। और शुरुआत स्त्रियों की कलाओं से हो रहा है, साहित्य से हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है जैसा कि रश्मि जी ने भी कहा है, विजन स्टेटमेंट में भी है, कि ये बायोलॉजिकल स्त्री की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि हर स्त्री में पुरुष है और हर पुरुष में स्त्री है। तो हमारे यहाँ पुरानी परंपरा में जो अर्धनारीश्वर की अवधारणा है, तो कहीं न कहीं ये मंच उस तरफ भी इशारा है कि हम अपनी जो तात्कालिक हमारी चुनौतियाँ हैं बतौर स्त्री, उन चुनौतियों के पार जाके हम अपने भीतर के का जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप है उसको एक्सप्लोर कर सके। और इसीलिए यहाँ पे किसी भी तरह के भेद के लिए, किसी भी तरह के प्यार से अलहदा किसी बात के लिए शायद जगह नहीं होगी। और प्यार ही इस स्पेस का धर्म है, प्यार ही इस स्पेस का ईमान है। हम कह सकते हैं कि पश्यंती जो है वर्जीनिया वुल्फ का अपना कमरा है, तो अक्का महादेवी का श्रीशैल वन भी है, और ललदेव का चिनार का जंगल है, तो मीरा का एक तारा भी है, और राबिया का बसरा का जंगल है, बसरा का वीरान है, और मलाला का प्रतिरोध भी है। तो जो जिस सात्विक प्रतिरोध की बात लगातार होती रही है फेमिनिज्म में, तो ये जो पश्यंती का मंच है वो कहीं न कहीं उस सात्विक प्रतिरोध को एक उल्लास में, एक आनंद में परिवर्तित करने का, प्रेम के जरिए परिवर्तित करने का स्वप्न भी है। और उस स्वप्न में किसी भी तरह की कोई कैटेगरीज के लिए जगह तो नहीं ही है। साथ में कोई भी जो हम कह सकते हैं कि जो भी वो चीज़ें जो किसी भी स्तर पे हमको बांट सके, उन सब की यहाँ पे मनाही है, और केवल प्रेम का सेलिब्रेशन है। और हम इसमें अपने सदियों के जो दुख है हमारा, उस दुख को अपने रचनात्मक सामर्थ्य से, अपनी रचनात्मक वैविध्य के सामर्थ्य से उसका एक सत्यम शिवम सुंदरम वाली दुनिया में रूपांतरण का एक तरह से कह सकते हैं कि एक आयोजन है पश्यंती। और पश्यंती नया पुराना, बड़ा छोटा, भाषा, लिंग, भूगोल सबको पार करके केवल मनुष्य होने के और सेलिब्रेशन का, केवल प्रेम के सेलिब्रेशन का एक स्पेस है। और इस स्पेस के में आप सबका, जो सभी साथी लोग इससे जुड़े हैं, उनको आमंत्रण है, और आएं और अपनी जो प्रेम की ऊर्जा है, उस प्रेम की ऊर्जा से
इस स्पेस को सुंदर बनाए और एक दिन ये पश्यंती का वर्चुअल मंच ही नहीं बल्कि सारी दुनिया ही पश्यंती के भाव से भर जाए, इस स्वप्न के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेधा जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रशांति के विजन को क्लियर किया। अलका त्यागी जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉक अस थ्रू फर्दर। आपका माइक म्यूट है अलका। I did the same as Medhaji. The sisterhood, is manifesting. I said namaste to everyone in this August audience, in this August gathering, and very appropriately begun by Chinmay's song of Mahadevi Verma. I would also acknowledge this fellowship of sisters that our dear sister Anamika Di has today brought to fruition and manifestation after years of hard work and creative visualization, creative contemplation. My pranams also to Professor Asha Kishorji, the inspiration behind Anamika Di's vision. Uh, the speakers before me, very senior Mamta Kaliaji, senior writer, Ranu Nyal, who will speak soon, and my Ranjana Paulji, my another sister in this fellowship, and Rashmi and Medhaji. They have really already set the ground and have depicted the vision that Pashyantee stands for. In fact, they have covered the points that I also felt were important. It's a joy to hear that this women's journal, Pashanti Women's Journal, dedicated to Samarasya. As Medhaji just said, and Rashmi has highlighted that in her own words, that this is not necessarily a women's journal because we all have a woman and a man, the male principle and the feminine principle in us. So the idea is to invoke that Ardhanarishwara. My sisters Rashmi and Medhaji have really very aptly stated the nuances of this idea of Ardhanarishwar and how this is also one of the underpinning points in this journal. So I would like to draw your attention to two words in the title of this journal, Pasyanti and Samarasya. As Rashmi actually mentioned, the word Pasyanti comes from Acharya Abhinav Gupta's conception of four levels of speech in the Trika philosophy. So I'll just take you a little bit into that philosophy, which informs the whole concept of Pasyanti. So the four levels of speech are begin with Paravak, the supreme speech, which is the supreme light of consciousness in which the Namarup have not entered yet. It is the dynamic light of awareness which is throbbing with creative principle, but the diversity has not yet manifested. The next level is Pashanti, which Anamika Didi has so wisely and insightfully chosen as the main title of this journal. So it is Pashanti, the speech of vision, uh, which is which is the level where the flashes of creativity are happening, where you may compare it with the flash of a photographer's camera, which would soon develop into the photograph with colors and details of lining, form, etc.
Then there is Madhyama, the middle one, in which these these flashes further actually take form. So in the creative process, the madhyama is where the writer or any creative person like musician or a painter or a poet, any kind of dancer, finds the relationship between the inner consciousness and the outer language in which he or she is going to express these flashes of creativity, forms expression in madhyama. And it is only so perhaps the writer and stops here, but the storyteller goes further, and he or she uses the final Vaikhari level of speech to give the charm and the Shakti that informs the very word that begins in the Parashakti. So for us, especially as writers, and as I said, for any kind of creative expression, it is Pashyanti level that is most significant and most important. Actually, all writers, all innovators, all creative artists draw upon this consciously or unconsciously draw upon Pashyanti. So Pashanti, and then they work through, negotiate through the names and forms, which then fill the, which actually provide the beauty of diversity, the myriad colors of existence into their expression. So however, the other word that I would like to draw your attention to is samarasya. And Medhaji and Rashmi have very beautifully expressed the idea of, the samarasya, the harmonious coexistence between the male principle, female principle, and not only that, actually, the harmonious coexistence of all creatures as well as nature, because char, achar, or prakriti, तीनों तीनों का सामंजस्य, जो कॉस्मिक सामरस्य है, जिसे हम शिव शक्ति के प्रिंसिपल से भी डिनोट करते हैं, अर्धनारीश्वर के प्रिंसिपल से डिनोट करते हैं, और सौंदर्य लहरी जो पहला ही वर्ष जहाँ कहता है कि शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु स्पंदितुमपि. This male principle, which is the holder of Shakti, the Shaktiman, which is Shiva, he's only Shaktiman. He contains the Shakti, and Shakti operates. Actually, these are not two different principles. This is almost like, the container and the contained. So the container is Shiva, and Shakti, the female principle, is the creative principle which makes everything manifest. So it is at the Pashyanti level where the manifestation has its source, where it begins, where it finds the flashes of creativity. I wanted, and I think this is best depicted in this full circle of, this symbolic yin and yang circle. You must all have come across that, where there is, this half the circle is the black, is black, and the rest half is white. This is almost as if, the male and female dancing in harmony together, or the kinetic energy or the potential energy are in complete harmony with each other. So this perhaps depicts the samarasya, and my friends have really spoken at length about the fact that Pashyanti aims towards that samarasya. It is not,
it is it does not stand for any kind of extremism. It stands for inclusivity. It stands for love, which perhaps Shams and Rumi and Khusro and Aulia, Nizamuddin Aulia represent, which perhaps our Anamika Didi represents. And so we stand for everything that is humane, that is uh, that is that is samarasya, and we exclude everything that is inhuman or violent in any form. And I would like to end here because I'm aware of the time, and but I would like to underline that actually our muse is our sister Anamika, and who by her very name Anamika refuses name and form. She is like the Para Devi, who is full of that light of creative principle, but has not it informs all other levels. It informs the Pashyanti. It is the light behind the Madhyama, where the creation is becoming clearer and clearer. And finally, it is also the Vani, the human, beautiful human speech that has its own power in binding human beings with each other. I would like to actually request Vinita if she can, persuade our Anamika Didi to convince or persuade or convince her to at least, give us the pleasure of listening to her, her beautiful words, the sheer sound of her voice, which is Vani, which is Vani itself. So, with these words, I'm so happy to be a part of this team in whichever way I could be with you today. That dream which was seen long ago has come to really, as if fruits are now, hanging, ripe mangoes are hanging now from the mango tree, the seed of which Anamika Didi had sown long ago. Thank you very much for listening to me. Thank you so much, Alka ji. Thank you so much, Alka ji, Rashmi ji, Medha ji, for sharing with us the journey and vision of Pashyantee. Pashyantee is an inclusive platform for with all the compassion and empathy. I would now request Tarika to introduce our chief guest. Thank you so much, Vanita ji. The chief guest with us here today, Yuvraj Sharma ji. He is an eminent theatre personality. He's a graduate from the prestigious National School of Drama, 1976 batch. Yuvraj Sharma's work with his forum, which is called Katha Scope, it hardly needs any introduction for anybody who's even remotely connected with the world of theatre. And his passionate merging of literature with performing arts, it has created several avenues for exploring literature more as a sensory experience rather than just as a solitary meditative exercise. And hence, it's no wonder then that he is associated with this particular platform, Pashanti, which aims to be interdisciplinary as well as exclusive for the expression of all the colors of human life in as many hues as possible. Yuvraj Sharma please grace us with your address. नमस्कार दोस्तों, आई होप यू कैन हेयर मी. आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? जी सर. Yeah, जी it's बिल्कुल. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू. मैं सबसे पहले तो हैरान भी हूँ और मेरे लिए बहुत ही अनोखा ये इवेंट है, क्योंकि मैं बुद्धिजीवियों में मतलब आई एम कॉट इन दैट काइंड ऑफ विद दोज काइंड ऑफ पीपल जो कि पढ़े लिखे हैं, और मैं बिल्कुल एक थिएटर वाला, जमीनी हार्डकोर थिएटर वाला आदमी हूँ. मुझे अपने आप को इस तरह महसूस हो रहा है कि ज़माना पहले जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री में था, तो ग्रेट डायरेक्टर बैरी जॉन जी, जो कि मेरे टीचर भी रहे हैं और अभी तक भी मैं उनको अपना ही गुरु मानता हूँ, उन्होंने एक नाटक किया था हमारे साथ, एडवर्ड बॉन्ड का था,
द फूल। तो उसमें जो इंग्लैंड के पोएट हुए हैं शायद 1793 1793 में, जॉन क्लियर, जो कि पढ़े लिखे नहीं थे और वो गांव में ही रहे और उन्होंने खूब लिखा, लेकिन उनको कुछ समझता नहीं था क्योंकि पोएट्री वो लिखते थे वो सो कॉल्ड पोएट्री जो है ग्रामर के हिसाब से उन उस मापदंड में नहीं बैठती थी, तो वो बहुत दुखी हुए। तो आखिरी जिंदगी के साथ उनको तो उसने जरूर उनका को दुनिया के सामने रखा और आज वो माने जाते हैं। मैं तो खैर जॉन क्लियर नहीं हूँ, पर मेरी स्थिति इस वक्त है कि मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच में हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या कहना है। मैं बहुत खुश हूँ बहन अनामिका जी के इस प्रयास से, और ये जो शुरुआत है आपकी मैगजीन की, मैं भी इसको समझते समझते पढ़ूंगा, इसके बारे में जानूंगा कि है क्या है। तो और मैं चूंकि परफॉर्मर रहा हूँ जिंदगी भर, आई एम ए स्टोरी टेलर, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मेरे साथ कोई इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा और मैं भूले जा रहा हूँ। और भी मजेदार बात यह है कि स्क्रीन के ऊपर 8-10 खाने बने हुए हैं जिसमें सब लोग गायब हैं, सिर्फ एक कोई व्यक्ति विशेष या मोहतरमा मुझे दिखाई देती है जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करूं। तो मेरी जो एक्टिंग थ्योरी तो बिल्कुल ही भिन्न है। मेरा तो है कि आई डोंट एक्ट, आई रिएक्ट। तो अगर मेरे सामने कोई रिएक्शन मुझे मिल ही नहीं रहा, मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है गलत है, तो मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर कोई सवाल पूछे तो मैं उसका जवाब दूं। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या कहना है। मैं बहुत खुश हूँ, बिला शक मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सियाने लोग हैं आसपास मेरे, और ये पहली बार होगी कि मैं स्टेज का एक कर्मी, हाँ थैंक यू, एटलीस्ट 2-3 लोग तो नजर आए और अनामिका बहन भी दिखी। सबको ओहो थैंक्स गॉड आप। तो मतलब मैं एक्टर ये दम रखता हूँ कि मैं लोगों को बुला लाऊं वापस। ओहो हो, जुग जुग जियो सभी लोग, और जो मुझसे बड़े हैं, मैं 70 का हूँ, जो मुझसे बड़े हैं मुझे आशीर्वाद दें। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप सामने हैं। रेणु जी वाह, अच्छा लगा ना, आप भी आ गई हैं। इस तरह रहो ना उत्कर्ष। और बेटा मैं सिर्फ एक बार मिला हूँ, अपना कैमरा खोल दो, बहुत अच्छा लगेगा ताकि लोग आसपास रहें। विनीता बहन तुमसे फोन पे ही बात हुई, प्लीज सामने आ जाओ। हाँ उत्कर्ष, यार ये ज्यादती है, अगर आप मेरे पास आए हो तो सब कुछ सवाल करो, मैं रिएक्ट करूँ। मैंने गुजारिश की आप लोगों से, आप स्टोरी टेलर, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप सवाल पूछेंगे या कुछ कहें, मैं किस पे बोलूं? इतना बड़ा मंच है, इतने सियाने लोग हैं, और अंग्रेजी ऐसे फर्राटे की बोलते हैं कि मैं पगला जाता हूँ। मुझे लगता है शशि थरूर ही मेरे आसपास हैं, सारे जितने शशि थरूर वाले उस कैलिबर वाले लोग हैं, सेंट स्टीफन वाले और ना जाने। मैं तो डीएवी और गवर्नमेंट स्कूलों की पैदाइश, इतनी अंग्रेजी मेरे बस की नहीं है। तो मैं खुश होता अगर आप आप मुझसे, विनीता जी, अनामिक, हाँ कुछ सवाल पूछो भाई दोस्तों, तब तो मेरे को समझ आए मुझे क्या बोलना वो जो एक है। झिलमिल प्रदेश होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक झिलमिल प्रदेश होता है जो कहा गया और नहीं कहा गया, उसके बीच जो छाया होती है, उसको आप अनुवाद अपने एक्टिंग में कैसे बाहर लाते हैं? जो पोइट्री की पूरी वीडियो श्रृंखला आप बना रहे हैं, वो आप किसी भी कविता में, किसी भी रचना में जो एक उसका अपोरिया होता है, जो उसकी ब्रह्म गांठ होती है, वो एक्टिंग से कैसे खुलती है? जो आपने स्टेज किया होगा, जो भी आपने अभिनय किए होंगे, उनकी ध्वनियाँ कैसे आपने उजागर की, इसी पर बताइए। कुछ भी बोलिए, हम बात करेंगे, जरूर हम जरूर गपशप जरूर, करने के शुक्रिया लिए। बहन, शुक्रिया बहन। जहां तक सवाल है कि ये कैसे होता है, देखिए मैं जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, उससे पहले मैं एक साल चंडीगढ़ में भी मैंने वहां पर जो ग्रेट राइटर बलवंत गार्गी जी हैं उनके अंडर काम भी किया। मुझे कभी भी इज्म समझ नहीं आए। मुझे सिर्फ एक ही बात जो आज समझ आती है कि कोई भी इज्म बाद में पहले रियलिज्म, तो रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। ये चीजें बाकी इज्म, क्यूबिज्म और ना जाने कौन का और सरियलिस्टिक और पता नहीं कुछ कुछ होता है, ये सारी चीजें बड़ी अच्छी हैं,
मैं जब मुझे जो होता है वो स्वाभाविक रूप से होता है। मैं जो कर पाता हूँ वो इसलिए हो पाता है कि आपके शब्द जो लोग देते हैं मुझे, अनामिका बहन हो, भाई हो, ये जिनको मैंने तो ये तो मतलब बड़ी अजीब सी बात मैं कहूँ, बून इन डिस्गाइज की कोरोना की वजह से मैंने पोइट्री पढ़नी शुरू की है, क्योंकि काम था नहीं थिएटर का, तो मैंने कहा चलो उसको इसी पे करते हैं। वो करते 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 मुझे लगा ये तो बड़ी गहरी चीज है, कविता तो बहुत कम में बहुत कुछ कहती है, एक लाइन में वो पूरा मतलब क्या ग्रंथ लिख देती है। तो ये अद्भुत चीज है, वो अपने आप होता गया। मेरा बस एक ही माइनस या प्लस पॉइंट है, मेरा जो दिल कहता है, दिमाग नहीं, दिमाग तो पता नहीं कहाँ है, दिल जो कहता है रिएक्ट करता हूँ मैं। ट्रांसलेशन वो जो मेथड है उसमें विश्वास नहीं करता, मैं ब्रेख्टियन हूँ, मैं रिएक्ट करता हूँ, जो सामने है मैं उसको रिएक्ट करता हूँ। मेरे आसपास जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। कोरोना तो एक कारण है, बाकी कारण हमारे खुद के पैदा किए हुए हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो समझ में हो। ये चीजें बड़ी अजीब हैं। हम इतनी भीड़ में भी अकेले हैं। सारे सो कॉल्ड रिश्तेदार हमारे बहुत हैं, खून के, हमें खून दे भी देते हैं जरूरत पड़ने पे, और फिर 10 लोगों को बता भी देते हैं मैंने उसको खून दिया है। तो बड़ी मजेदार चीजें होती हैं, पैसा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, इज्जत भी मिलती है। पता लगता है इज्जत मुझे इसलिए दी गई है क्योंकि मुझे इज्जत देते वक्त उनकी इज्जत बहुत होती है। तो सारा कुछ समझ आता है। ये छोटी छोटी परतें हैं, पर मैं अपने ही जो झटका दिमाग है मेरा, जैसा भी हूं मैं, मुझे अपने आप हो जाता है, मैं करता कुछ नहीं हूँ, मुझसे हो जाता है। ये परमात्मा का आशीर्वाद है कि वो मुझे माध्यम बनाए हुए है, आप लोगों के लिखे हुए खूबसूरत शब्दों का। आप मुझे प्रेरित करते हैं। मैं, हालांकि जो मेरा सब्जेक्ट है, पर्सनल सब्जेक्ट जो है बॉडी लैंग्वेज है, माइम, पेंटोमाइम और बॉडी लैंग्वेज में मैं ज्यादा मतलब खुश रहता हूँ उस तरह का काम करना। लेकिन जब से ये कविता पढ़नी शुरू की है तो मुझे लगता है कि ये आत्मा है, बहुत कम शब्द में बहुत कुछ कहती है, इतना कुछ कहती है कि आप कह ही नहीं सकते कि आप अकेले हो। किसी एक पोएट को भी या किसी एक पोएम को भी समझना शुरू करो तो आपको वो शख्स जिसने लिखा है, आपको उससे प्यार होता है, आप उसकी इज्जत करते हैं कि मेरा तो दुख दुख ही नहीं है, उसका दुख तो कमाल हो, कैसे कैसे लिख पा रहा है, कितनी सफोकेशन में उसके अंदर से निकल रही हैं चीजें। सफोकेशन कहूं या एक अजीब डिसिप्लिन है जो समाज का नहीं, ऐसा तो अच्छा नहीं होगा। ये तो लॉजिकल नहीं है, ये तो धर्म के अगेंस्ट जाता है, संस्कार के अगेंस्ट जाता है। हम बस हम ही नहीं हो पाते, बाकी सब कुछ हो जाते हैं। तो जो मैं हूं, मैं रिबेल हूं, मेरी मैं आदतन रिबेल हूं। मैंने नौकरी करनी कभी पसंद नहीं की, क्योंकि नौकरी बड़ी अजीबोगरीब चीज है। वो एक अजीब सा, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, हालांकि मतलब खतरनाक डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ, लेकिन नौकरी जो 10 से 5 है वो मुझसे नहीं हो पाई कभी भी। जहां भी रहा साल भर रहा, फिर चला गया, या उनको मैं पसंद नहीं आया या मुझे वो पसंद नहीं आए। कुछ भी है, पर जो करता रहा सिर्फ थिएटर ही करता रहा, लोगों को पढ़ता रहा, पढ़ के अपने दिमाग जो भी है तो सही, उससे जो हो पाया मैंने शरीर और दिमाग का दोनों का बिठा के संतुलन जो बन पाया, कुछ लोगों को समझ आ गई तो मुझे लगा गलत तो नहीं होऊंगा, हाँ कहीं कहीं मैं इधर उधर हो जाता हूँ, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, पर जो करता हूँ बड़ा मजा आता है फिर करने के बाद। जब कोई बहन मेरी पीठ थपथपा दे या प्यार से कहे भाई तू ठीक करता है, ये चीज अच्छा लगा, तो मुझे लगता है हाँ बुद्धू तो नहीं हूँ मैं कम से कम। एबीसी आती है, चलो चलने देता हूँ। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश यही है, जितने भी आप लोग सियाने लोग हो, सियाने इसलिए कहता हूँ कि आपने अपना जो प्रोफेशन है खुद चुना है, पढ़ना लिखना, और बड़ा खूबसूरत है ये प्रोफेशन। बड़ा मुश्किल होता है पढ़ाना, क्योंकि जो भी पढ़ाता पहले तो बहुत पढ़ता है, पढ़ेगा तभी पढ़ा पाएगा, और सिर्फ अपने आप को नहीं पढ़ेगा, वो दुनिया को पढ़ेगा, फिर जाकर कहीं पढ़ा पाता है। तो कुछ लोगों ने मुझे पढ़ा होगा कि इसको कुछ नहीं आता है, तो उन्होंने मुझे पढ़ा दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और अनामिका बहन या विनीता जी या कोई भी कोई सवाल पूछना चाहे
तो मुझे खुशी अच्छा, होगी। इधर फिर वही बात, आई एम श्योर। हिंदी में नाटक लिखे नहीं जा रहे हैं, अब कहानियों का मंचन होता है या जी कविताओं का मंचन होता है। कविता इतने से स्पेस में एक पूरा नाटक जी अभियोजित कर देती है, जो सारे एक कौंध में। अब इतने से स्पेस में जो आप नाटक जी अभियोजित करते हैं और दूसरे की कहानियों का जो जी नाट्य रूपांतरण होता है उसमें, और जैसे मोहन जी राकेश आदि ने पूरे नाटक लिखे या प्रसाद ने क्लोजेट प्लेस लिखे, जी उसमें कितना अंतर होता है एज एन एक्टर। व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगता है कि मंचन में क्या समस्याएं आती हैं? अब जैसे ध्रुव स्वामिनी का अगर आप मंचन करेंगे तो कैसे करेंगे, या क्लोजेट ड्रामा का कैसे करेंगे, और कहानियों का जो नाट्य रूपांतरण करते हैं और कविताओं का। तो जैसे अभी आपका एक वीडियो मुझे याद आ रहा है जिसमें आप एक ही कविता को 4 वॉइसेस में टूट, क्योंकि हम सब मिनी सेल्फ्स हमारे भीतर हैं, अब उसको तोड़ के एक पूरा उसका वितान खड़ा करना, एक ही चीज 4 वॉइसेस में रेंडर करना, और उससे स्प्लिट पर्सनालिटी भी हमारी, या मल्टीपल सेल्स भी, जैसे गलबैया लगा के नाचते हैं। तो ये सब जो आप अनुभव आपके हैं उनके बारे में आप समझ के कहें कि सामरस्य की क्या अवधारणा आप लोग नाटक में प्रस्तावित करते हैं। और ये जो हम लगातार, ये हमारी मैं बहनें कह कोशिश रही थी कि हाँ, कि ये जो हमारे भीतर ही 2 तरह के तत्व हैं, प्रिंसिपल है, वो वही हाथ पकड़ के घुंघरी कलैया खेलते हैं, एक म्यूजिकल चेयर होता है। तो उसको आप कैसे मंचित करते हैं, दोनों तीनों में क्या चुनौतियां होती हैं, कविता के मंचन में, लिखे हुए आपने में, और थोड़ा कहानी के मंचन? मुझे लगता है युवराज जी का नेटवर्क थोड़ा सा डाउन है। हम कुछ देर के लिए उनका वेट करेंगे। तारिका, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, मैं युवराज जी से बात कर लेती हूँ। जी जी जरूर। The next speaker that is going to join us is Dr. Ranu Unyal. Dr. Unyal is a senior academic and she is a professor of English literature at the University of Lucknow. Apart from her many significant academic contributions, which are unfortunately too numerous for us to count here in the given time, she has also written many celebrated literary works. The most recent one being the collection of poems titled Saida Ke Ghar, which has been praised for its depiction of elegiac moments in the sensitive context of communalism in Bihar. Feminist and literary energies like hers are crucial for platforms like Pashyantee to flourish. I now invite Dr. Unyal to deliver her address. Thank you so much, ma'am. Namaskar. It's a very special day today. Launching of Pashyantee, which is dedicated to the memory of Anamika's mother, Professor Asha Kishore. Pashyantee is a dream, Pashyantee is an utsav, Pashyantee is a mohim, and Pashyantee is about sajedari. The journal hopes to emerge as a training ground for young men and women, and I'm very happy to be associated with it. I'm not at all hesitant to admit that we are all phenomenal men and women who have joined this endeavor to take literature forward. Some rasya, equipoise, some bhav, samta ka ras. It is time for us to realize that we are all one. We come from the same root, go through different passages, cross, intersect, meet, and then enter into a new world. What lies therein, none of us can ever say with authority, but our conviction that life moves on. The trajectory does not come to an end. We are all soul sisters and brothers who meet only to part, but hope to renew ourselves with a vision.
We are all living in times of rapid change, marked with fear, distrust, uncertainty, and are conscious of the agony of being. As artists, we have come together to express solidarity with all human beings on this earth. We believe in a life of dignity for all. Binaries exist. Binaries make and unmake us. Binaries disempower and dehumanize us. As long as there is discrimination on grounds of caste, color, creed, nation, gender, religion, ability, ethnicity, there is bound to be inharmony, inequity, injustice. And in order to be able to bring equipoise, it is important for like minded people to create a space for dialogue. We cannot talk of samrasta, samrasya, without samvad. And dialogue needs space, willingness to hear the voice of the other. It was Albert Camus who, in utter despair, said in his myth of Sisyphus, if the world were clear, art would not exist. Art and artist may not be ready with an answer, but they do probe us with questions that stir our conscience and make us think. Pashyantee is a step in that direction. It is in the art of seeing that we hope to resurrect the desire for meaning in this meaningless world. And as we move, we find ourselves in the autumn of our lives. We are confronted with a question, and that question is, what kind of a world do we wish to leave behind for our children? And I'm confident all of you would agree when I say we want a better world where there is love, peace, happiness, health, and respect for all, irrespective of their differences. Vasudhaiv Kutumbakam. This earth is my home and my family. Why do we soil it with blood and tears? Let us soak it with human kindness and love and see the landscape bloom. And it is as a ray of hope that I see the efforts of our young team members through Pashyantee. We wish to be a part of that dialogue, संवाद. संवाद वो जो समभाव की संवेदना को जगा सके. If literature is the sum of life and life is trapped in a duel between good and evil, need of the hour is not agitation, but affirmation. Not regression, but renewal of energy and restoration of equipoise. A realization that you and I are one. The magic of our being lies in accepting that the same blood runs through each one of us. If water it is that quenches our thirst, then let there be enough for all. If it is hate that burns us all, why let it flicker in hearts? Douse it with the fire of love and let the mind be the seer. For the one who sees is the one who creates. And like a sthit pragya, he is the one who surrenders himself or herself to the beauty of light and learning. Anamika says it is an attempt to connect the dots, to bring to the fore the contribution of our foremothers, our great grandmothers, who not only fought for truth and justice, but also let their courage flow through our veins. One, Rashid Jahan Angare Wali, in 1930s set the fires burning, unafraid, undaunted. She worked relentlessly as a doctor and wrote fearlessly about the Orthodox society and its attitude towards women. It was Mahadevi Varma who, in her Shrankla Ki Kadiyan, picked up the courage to defy patriarchy in all its nefarious forms. Atya Hussain, Ismat Chugtai, Kuratullah Haider, Subhadra Kumari Chauhan, Kamla Das, Anita Desai, Shashi Deshpande, Nayantara Sehgal. We have Mamta Kalia ji. The list is endless, and we are sisters
who believe in the power of sisterhood. Our unsung sisters have been our strength and nurturing force. It is to their indomitable spirit that we hope to pay our Matra Rin through Pashyantee. To reach out to sister languages, to explore and navigate through many worlds inhabited by women, our hope is to be able to retrieve, resuscitate, renew, review, read, and recreate a world which welcomes one and all. समता का वो भाव कि सर्वमम रूप है. पश्यंती का एक सपना है जहां हर औरत का दुख मेरा दुख बन जाए, हर औरत की उपलब्धि को मैं अपनी उपलब्धि कह सकूं, हर आंसू मेरी हथेली तक आते आते मुस्कान बन जाए और हर पीड़ा को महसूस कर सकूं सिर्फ ये कहकर कि सर्व मम रूप है. This is the dream that will open our paths in Pashyantee, and this is what I believe Pashyantee stands for. This is what Pashyantee will actually try to look forward to. And I would just like to conclude with a very short poem of mine, which says, I am in universe. I'm complete. I seek none. It is emptiness that calls for more. I have enough fire in me to burn 100 demons, enough water to kill the heat of 100 suns. It is emptiness that calls for more. I have enough sky to hide my million tatters. Would I then grieve for a cloak to wrap this flesh all blue? Enough miles to sketch and traverse the mud-wrecked solitude of the earth. Enough air to spray life into the dead and imbecile. Enough to change the course of dreams. Enough to bring you home and keep you warm forever. Enough to let you see the light of forgiveness committed to the winds of gratitude. Seek me, embrace me, or stay away as you please. It is emptiness that calls for more. And with this, I would like to extend my wishes to Pashyantee, and I'm very happy to be a part of it. Thank you. Thank you so very much, Dr. Onyal. Such eloquence and such beautiful words. Yuvraj Sharma ji is back with us. So, can I request you, sir, to maybe finish what you were Am I saying? audible? जी Am I sir. audible? Okay. जी सर, आपकी आवाज आ रही है. तो टेक्नोलॉजी का पता है, मैं कंप्यूटर से इतना ज्यादा वेल वर्स नहीं हूँ. मैं माफी की आप रेणु जी को रिकॉर्डिंग में आप सपना साझा करें, आप अपना साझा करें, अनुभव वृत्त साझा करें, सपना साझा करें, स्मृतियां साझा करें. यही हम लोगों की पूंजी होती. देखिए जी, अपने सपने, अपनी आपने कुछ कहा? अपने अनुभव. हाँ, जरूर बहन, जरूर. मेरा ऐसा है कि देखिए, कथा कहना या स्टोरी या कहना ही, ये तो इंसानी प्रवृत्ति है, रह ही नहीं सकता है. मेरा ये था कि मैं हर बार कहना चाहता था और मुझे इस बात का भय नहीं था, डर नहीं था कि मैं क्यों कहना, क्या लोग सोचेंगे. मैं कहना चाहता था सवालों के, मेरे पास ढेर सारे सवाल था, जो होता है होती क्यों नहीं, ये मेरा सवाल होता था. कि हर कहानी एक था राजा से शुरू होती है, एक थी रानी से क्यों नहीं. तो वो उनके पास कभी जवाब नहीं होते थे. उनको फिर मुझे डांट ही पड़ती थी और बदतमीज कहलाया जाता था. सो एनीवे, वो एक छोटे से कस्बे में होने की वजह से नहीं तो जितनी भी ट्रेनिंग करने के बाद है कि चूंकि मैं पढ़ता बहुत कम था, पढ़ाई से मेरा कोई ताल्लुक उस तरह से नहीं था, ग्रेजुएशन जैसे तैसे कर ली. लेकिन मैं यहाँ जब एनएसडी में आया तो हमारे एक बहुत ही ग्रेट थिएटर डायरेक्टर थे, मिस्टर बीवी कारंत,
जो कि जिन्होंने तुगलक प्ले जो है उनका अनुवाद भी किया था कन्नड़ से और अंग्रेजी से भी, जो गिरीश कार्नाड जी ने लिखा था। तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे और अक्सर कहते थे कि आई एम वेरी पॉजेसिव अबाउट यू, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम पढ़ते नहीं हो, और अब इस उम्र में तो तुम पढ़ोगे नहीं, तो एक काम किया करो, अखबारें पढ़ा करो, उनके एडिटोरियल 2-3 अखबार लेके, तो तुम्हें एक ही सब्जेक्ट के बारे में 3 अलग-अलग राय मिलेगी, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कंपैरेटिव स्टडी क्या होती है, और किसी चरित्र को समझने में भी अच्छा लगेगा। खैर, थोड़ा-थोड़ा मैंने पढ़ने शुरू किया। मैंने जो पाया है, जैसा जो आपका सवाल था, एक तो हिंदी नाटक लिखे बहुत कम जाते हैं। मराठी लिखे जाते हैं, बंगाली लिखे जाते हैं। हिंदी नाटक अब मुझे नहीं मालूम इसके पीछे कारण क्या है, क्यों कम लिखे जाते हैं। मुझे जो समझ आता है, एक तो है कि वी डोंट हैव ऑडियंस। हमारी जो ऑडियंस है नाटक देखने वाली, वो अब कम होती जा रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक जब से माध्यम आया है, लोग घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं। लेकिन इससे पहले जब नहीं था, तो एक आदतन हम लोग कहते थे नाटक मैं क्यों देखूं। उनका सवाल होता है, वो रामलीला में चले जाएंगे क्योंकि वहां पैसे नहीं लगते हैं। उस तरह की फोक थिएटर जितना भी था पूरे भारतवर्ष में, तो वहां टिकट नहीं होती थी, लोग जाते थे, कलाकार करते थे, जो इनाम मिल गया थोड़ा बहुत तो वैसे सर्वाइवल हो जाता था। और ज्यादातर वो पौराणिक कहानियों पे ही होता था, या लोकल जो थीम होती थी, लोक कथाएं होती थी, उन पे करते थे। तो वो कामयाब होते थे। अब की समस्या जो है, इंसान थोड़ा अपने आप को, इस इंसान ने खुद कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है। सवालों के अपने ही वेब में, अपने ही जाल में फंसता गया, तो उसको जवाब नहीं मिले, तो उसका फिर ये हुआ कि उस पर लिखे जाना शुरू किया लोगों ने। अब प्रॉब्लम है, जो लेखक है वो लिखता है। जैसे मैं आपको कविता की बात भी कहूँ, कविता, अब पता नहीं भाई, आई स्टैंड करेक्टेड, अनामिका बहन, मुझे प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा। कविता इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों नहीं हो पाती है? एक तो जब हमको जो पाठ्यक्रम होता है स्कूलों में, सीबीएसई वाला, उसमें इतनी भारी भारी वो कविताएं बोल देते हैं, हम बस वो रट लेते हैं, हाँ जी ये तब पैदा हुए, ये हुए, और फिर स्वर्गवास हो गया। हमको प्रेमचंद समझ आता है, कविता समझ नहीं आती है। क्योंकि कविता को अप्रिशिएट करने के लिए, हाउ टू अप्रिशिएट पोइट्री, आपको पहले सरल उसको मतलब इस तरह से, जैसे सबसे दुखदाई तो यह है कि हमारे मुल्क में बच्चों के लिए कुछ लिखा ही नहीं जाता। तो मैं पोइट्री तो तब कहूंगा कि मेरे लिए पोइट्री लिखी गई हो। जिन पोइट ने लिखी, उन्होंने, पोइट ने तो अपने लिए लिखी और समाज पे लिखी। अब एक स्कूल का 8वीं का बच्चा, 6ठी का बच्चा, वो समाज वो कहाँ सोचेगा? वो कह रहा है कि वो जो है छात्र, स्टूडेंट, या जो बच्चा है, वो बच्चे की पोएम कौन लिखता है? कोई कहानी नहीं लिखता है। हम बाबा ब्लैक शिप तो सीख जाता है हमारा बच्चा, पर दूसरी हिंदी की पोएम है ही नहीं। हमारे रियलिटी शोज देख लीजिए जो आजकल चल रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां, 4-4 साल की बच्चे यहाँ हैं, और वो बीड़ी जलाए दे जो गाना है उसके ऊपर डांस करती हैं, क्योंकि हमने बच्चों के गाने नहीं लिखे हैं। तो अब बच्चियां क्या करें? देखिए, बच्चे को थॉट कहाँ से आती है? दिमाग से नहीं आती, उसको उसको वातावरण, सराउंडिंग से आती है। जो शब्द देखता है, जो विजुअल देखता है, जो कान सुनता है, वो वही रिप्रोड्यूस कर देता है, वो नकल करता है। आपने उसको अच्छा परोसा ही नहीं, तो वो क्या करे? इसी तरह पोइट्री का हुआ। पोइट्री आपने इतनी भारी भारी पोइट्री कर दी। हम कॉलेज में थे या स्कूल में जब भी थे, और जयशंकर प्रसाद जी का अगर स्कंदगुप्त लगाते हैं, वो भाषा हिंदी के साथ, मैं प्लीज, आई स्टैंड करेक्टेड, मैं गलत हो सकता हूं। मेरी बेसिक प्रॉब्लम यह है कि हिंदी बोली कहां जाती है? हिंदी किसको कहते हो? हमारे, मतलब विडंबना तो यह है कि एक बिहारी भाई मेरे को बोलते हैं हमारी बहन, तो हम हंसने लग पड़ते हैं। अरे बहन नहीं, बहन होता है, क्योंकि हम पंजाबी बहन बोलते हैं और लिखते हैं ब और न, लिखते बहन है लेकिन बोलते बहन है। और जो बेचारा ठीक बोल रहा है उसको हम कहते हैं अरे क्या बहन बहन क्या कह रहे हो? अब वो ठीक बोल रहा है। तो हिंदी है कौन सी, और मुझे कौन सी पढ़ाई जा रही है? मुझे ग्रामर पढ़ाई जा रही है? लिंग्विस्टिक के हिसाब से हिंदी क्या है? मेरी मातृभाषा नहीं है, मैं तो पंजाबी हूं। अफसोस यह है कि अब पंजाबी भी ढंग से नहीं पढ़ाई जा रही। मैं पंजाबी अगर कविताएं वो समझ आएगी, जबकि शिव बटालवी सबको समझ आ जाता है, वो पंजाबी पोइट, वो समझ आ जाता है। तो सरल भाषा में लिखा नहीं गया। तो अब जैसे आपने कहा कि हिंदी नाटक जो है, मोहन राकेश का नाटक जो है,
मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो अपूर्ति, आधे अधूरे, वो आधापन जो है, क्या वो जो सामने मेरे दुकान चलाता है, कोई भी अग्रवाल गुप्ता जी या कोई भी, उसके घर में वो प्रॉब्लम है क्या? तो आप नाटक किस पे लिख रहे हो? एक खास क्लास के लिए लिख रहे हो? आप देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, करोड़ों रुपए लगा के सुभाष घई फिल्म बनाते हैं, ये रिक्शा वाला बाहर निकलता है, फिल्म देख के कहता है फिल्म बकवास है, फिल्म पिट जाती है। तो आप बेवकूफ थोड़ी, ऑडियंस को बेवकूफ क्यों बनाते हो? ऑडियंस सब समझती है। आप जो लिखते हो, बोलते हो, कहते हो, जिससे भी कहना चाहते हो, आपने उसकी सुनी। अगर आपने उसकी सुनी होती तो आपने उस पर लिखा होता। जैसे कि केदारनाथ जी लिखते हैं, कवि केदारनाथ लिखते हैं, या कुंवर नारायण जी लिखते हैं, या नागार्जुन बाबा लिखते थे। और जमीनी चीज है, आपको थप्पड़ पड़ता है जब आप उसको पढ़ते हैं, तो आपको समझ आता है, हाँ यार, ये तो मेरे बारे में कहा जा रहा है, मैं ही तो वातावरण क्रिएट कर रहा हूँ मेरे आसपास से। तो जब ये चीजें पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ अंदर से कुछ झंझोड़ता, मतलब झिझकोरता है, कोई ना कोई चीज जो मुझे इस चीज के लिए फोर्स करती है टू एक्सप्रेस। अब ये एक्सप्रेशन जो है, ये कुछ परमात्मा की देन है। मैं ट्रेनिंग से नहीं सीखा हूं, मैं इम्पल्स से सीखा हूं, मैं इंटेलेक्ट से नहीं सीखा, मैं कॉमन सेंस से सीखा हूं, क्योंकि मैं इंटेलेक्चुअल हूं ही नहीं। मैं, अब पेन हो, घृणा हो, या जितने भी भाव हैं, ये सारे तो इंसानी हैं। मतलब ये तो हर कोई महसूस करता है। अगर कांटा लगेगा तो रिक्शा वाले को भी लगेगा, और एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला, बस एक्सप्रेशन ये है, वो उई करेगा, वो आउच करता है बच्चा, लेकिन पेन तो पेन ही है ना। तो अब ये आपको शब्दों का चुनना बहुत जरूरी है। आप शब्द जब चुनते हैं, आवाम के लिए चुनते हैं, लोगों के लिए चुनते हैं, तो इस चीज का ख्याल रखना होगा आप किसके लिए कर रहे हैं। मैं कहानियां इसलिए चुनता हूं, मैं पारसाई जी की कहानियां इसलिए सुनना करना पसंद करूंगा, और उनका शरद जोशी जी का, क्योंकि उस डायरेक्ट, मैं थिएटर वाला हूं, मेरा काम है, आ, मैं सॉल्यूशन नहीं देना चाहता। मैं कोई वो नहीं, योगी नहीं, या धर्मात्मा नहीं जो सॉल्यूशन दे रहा हूं, या साइंटिस्ट नहीं। मैं जगचोरता हूं। वो ब्रेख्त करता था, मैं जो ब्रेटोल्ट ब्रेख्त जर्मन के प्लेराइट हुए हैं, मैं उनका फॉलोअर हूं, उनके एक्टिंग स्टाइल का, उनके राइटिंग स्टाइल का। क्योंकि उनका सीधा सा कहना ये था कि डोंट मेक फूल, ऑडियंस बेवकूफ मत बनाओ, उनको जगाते रहो कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, हम नाटक कर रहे हैं। वो बीच बीच में ऐसे वो सरप्राइज देते थे, कभी फिल्म चला दी, कभी जोर से धमाका कर दिया, किस ऑडियंस के इतनी इन्वॉल्व ना हो जाए कि वो तो कहे भावुक होकर रोना शुरू कर दे। तो वो कहता था, ब्रेख्त का ये था कि मैं रुलाने नहीं आया, मैं सवाल जो तुम्हारे हैं वो तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि अरे मूर्खो, सो नहीं जाओ। और चूंकि वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुए थे, तो वो उन्होंने झेला था सब कुछ। तो उनका जो स्टाइल था, सी दैट्स एलिनेशन थ्योरी का जो है, वो मैं इसीलिए विश्वास करता हूं, मैं एक्टिंग को उस तरह से लेता हूं कि व्हाई शुड आई एक्ट। जो शब्द लिखे हैं, मैं उन शब्द को पढ़ा, मैं रिएक्ट करता हूं, सवाल का जवाब है, किसी ने मुझसे पूछा, तो मेरे को यही समझ आई कि नाटक में पहला सवाल जो है वो एक्शन है, उसके बाद तो रिएक्शन ऑफ द अर्लियर एक्शन है टिल द एंड ऑफ द प्ले। क्योंकि कोई कहता है कि आपने मुझसे पूछा, बहन ने पूछा, अनामिका ने, भाई तुम बताओ, तो मैं रिएक्ट किया हूं, मेरी तो तैयारी कुछ है नहीं, मैं तो रिएक्शन में बोल रहा हूं। यही नाटक में, यही कहानी में है। मैंने जो लिखनी शुरू किया थोड़ा बहुत, मैं 35 साल स्कूलों के साथ रहा हूँ, चिल्ड्रन थिएटर किया है। हाँ, मैं भूल ना जाऊं भाई, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। वो मेरा लिख दिया गया था उसमें पोस्टर में, आई एम रिटायर्ड प्रोफेसर। एक तो नाटक में कोई रिटायर होता नहीं और प्रोफेसर नहीं। मैंने क्लासेस जरूर की हैं बॉडी लैंग्वेज पे, मैं कतई प्रोफेसर नहीं हूँ। मैं एक थिएटर वाला हूँ, जितना आता है वो शेयर करता हूँ, और खूब मजा आता है करने में, क्योंकि लोग कहते हैं, समझ लेते हैं, जब गर्दन यूं यूं हो तो लगता है हाँ मेरी बात पहुंच गई। तो मैं अब ज्यादा क्या बोलूं, आप ही कोई सवाल पूछें तो शायद मैं फिर रिएक्शन में बोलूं। और आपको वक्त देखना होगा, क्योंकि आपका लिमिटेड टाइम है, और मेरे बाद भी और लोगों ने पूछना है, मैं तो बोलता रहूंगा। और चूंकि अभी शुरू हो गया प्रोग्राम, तो मैं दावे से कह सकता हूँ इसके और भी इसी तरह की बैठक होंगी। तो मेरे जो अंदर रह गई है कोई थोड़ी बहुत आग, तो मैं फिर कभी उगल लूंगा। तो अगर तो मेरा वक्त हो गया है बोलने का, वैसे वक्त नहीं हुआ, वो तो परमात्मा को पता होगा। तो अगर आपको लगता है कि
now I should keep quiet and let somebody else speak. Please, आप मुझे इजाजत दे सकते हैं अगर बाकी हम लोगों ने भी बोलना। वीडियो लगाएंगे सर, आपकी कविता की वीडियो श्रृंखला हम यहाँ लगाएंगे, क्योंकि हम अरे वाह, हैंड होल्ड विश्वास करते हैं। ठीक है, जी जी आगे मैम, शुक्रिया। मैं सबका शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और आई एम फीलिंग रिच। इतने सियाने लोगों में बैठ के थोड़ी सी तमीज तो आ ही जाती है ना। सो आई एम फीलिंग गुड। मैनर्स ही आ गए, बोलना क्या है, शब्दों का चुनाव क्या है, वो सब समझ आ रहा है। और उत्कर्ष को कहिएगा जाते जाते मुझे बाय कर दे। फिर छुप जाता है, पता नहीं क्यों शर्मीला है इतना। हेलो उत्कर्ष, छुपो नहीं बेटा। मैं इतना शक्ल से खराब था, मुझे लगता है मैं बड़ा हैंडसम आदमी हूँ 70 में भी, तो लोग मुझे पसंद करते, तुम क्यों छुप जाते हो यार। एनीवे, जीते रहो, खुश रहो, मेरी ढेरों दुआएं, और खूब तरक्की करो। और मैं सुन रहा हूँ अभी बाकी का प्रोग्राम, प्लीज कंटिन्यू विनीता बहन। Uh, thank you so very much, Yuvraj Sharma ji. Even though it was such an interesting conversation, but जैसे आपने कहा, we are a little short of time. We have to follow a schedule. So even though this was not part of the formal schedule, but because we've received so many requests, can I please request Anamika ji to say a few words, maybe just 2 or 3 minutes, before we go on to the concluding remarks? Anamika, ma'am. I've spoken, and you know, we believe in being dialogic, and we've been talking a lot. And let Utkarsh say things whatever he wants to, and that's all. Next time. Silence also is a form of speech, isn't it? मन मस्त हुआ तो क्या बोले? Kabir says, मन मस्त हुआ तो क्या बोले? So I'm at that state of elation now, beyond words. Thank you so much for being there. Thank you. Thank you so much, Anamika, ma'am. With this, I think we've reached the last juncture, the last point of the program. And I would like to invite Utkarsh Amitabh for the concluding remarks. But before that, just a brief, maybe um, a memorizing again of everything that has been said so far, so that we will just we'll go to the very last point, the highlight in a certain sense of the program. And I want to thank all the speakers who've taken time out to talk about so many different aspects of Pashanti. Mamta Kalia ma'am, and actually even before that, Chinmay's invocation of Mahadevi Verma, almost as if she were the muse of what we're trying to do here at Pashyanti. And then I think Mahadevi Verma's works and her ideas have resonated throughout in so many different conversations by so many different speakers, that I think she is part of the subconscious of Pashyanti in a certain sense. So it was the most apt beginning, that Chinmay actually gave to the program. So thank you so much for that. Ranjana Kaul, ma'am, for a wonderful introduction. Thank you so very much. And the idea of Samras, the idea of Samvad, that Medhaji and Rashmi Bharadwaj and Alka, all of you talked about. Thank you so very much. And also, Yuvrajji, beautiful, wonderful conversation about Bertolt Brecht, the idea of combining and the need to combine politics and literature, and using literature as a medium of conversation to bring about at least an acknowledgement of what is happening, representation before judgment. Those are very important ideas, and those are the ideas that Professor Anu Unyal also talked about with a wonderful poem, and everything else that she said. So thank you so very much. I would like to now invite for the vote of thanks the last speaker, definitely not the least, Utkarsh Amitabh. To the Pashanti family, he is very, very well known and very, very dear, as must have been evident. Um, Utkarsh is the founder and CEO of Network Capital. Which is one of the world's largest career intelligence communities. He is a writer at Harvard Business Review. He was a Sheevan Fellow at University of Oxford and a World Economic Forum Global Shaper. His book, which was released recently, which is titled The Seductive Illusion of Hard Work, it became a global bestseller. So, congratulations on that. He also writes for Mint, the Economic Times, and the World Economic Forum.
I would like to invite Utkarsh Amitabh now to deliver the vote of thanks. Thank you so very much. It's a pleasure to be here, to be included in this family. And you read out a long bio of mine, but I think my biggest claim to fame is that I'm the grandson of Dr. Asha Kishore and the son of Dr. Anamika and Dr. Bindu. I really believe that what Pashanti is doing is form a community based on trust, intimacy, and connectedness. In today's world, I think our attention span is that of a goldfish, perhaps getting reduced even further. But when we come together to try and understand poetry and connect with each other with deeper bonds, and when we explore what is behind our CVs, what are real stories, that's where the essence of a new normal comes to fore. During the pandemic, a lot of us were trying to figure out what does the new normal look like. ये दुनिया कैसी लगेगी ये सब के बाद और मुझे लगता है कि पश्यंती जैसी कम्युनिटीज में वो पावर है कि they can make the world a kinder place through the power of words. This vote of thanks is essentially meant for anyone listening who's perhaps having a tough day, perhaps having a tough year, perhaps having a sense of lackluster in one's life. This is the community where you can find and meet interesting people and learn from them. And we'll open up our hearts and minds to you and invite you to be a part of this intimate community that we're all forming. In my own capacity, I have been again blessed to learn from Dr. Namika, who I call mom, on a daily basis, and that has of course worked very well for me because it's the most accelerated way of learning anything. And moments before the launch, one of my latest articles in Harvard Business Review just got published. And I remember my mom was actually in the hospital taking care of my grandmother who's no more. And she somehow managed to read a draft and give me some comments. And I included it and sent it to the editor and so forth. And I know that some parts of that article were also read by my grandmother. My mom would have managed it somehow. So, yeah, this. A poet can also be a master juggler, and a master juggler can figure out a way to write poetry. And Pashanti can make it happen. It's a pleasure, again, to learn from all of you. And thank you for giving me or lending me your ear. I appreciate it. Thank you. Thank you so much, Utkarsh. With this, I believe we've reached the end of the program, and I would like to thank all the speakers and Vinita ji for taking the time out, being here, and just making this such an enriching experience. For everybody who's joined us on Facebook and everywhere else, thank you so much for joining us, and we hope that we can have more such conferences, such conversations, and such debates very, very often. Thank you so much.